Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My dear brothers and sisters, it's a joy to meet you all in this program. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी है. The Bible says in Psalm 16:11, in His presence there is fullness of joy. बाइबल भजन 16:11 में कहती है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Today His presence is going to bring abundant joy into your life. आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में भरपूर आनंद लाने जा रहा है. Our loving Lord Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे. Today every one of you who is watching this program is going to see the glory of God. आज आप में से हर एक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं परमेश्वर की महिमा को निश्चय ही देखेंगे. So expect a miracle to happen in your life. तो आज अपने जीवन में एक चमत्कार के होने की आशा रखें. Shall we listen to this beautiful song now? आइए हम इस सुंदर गीत का अब आनंद लें. My dear friends, today we are going to meditate upon the word of God that is in Psalm 127:1. अजीजों, आज हम भजन संहिता 127 के पहले पद पर मनन करेंगे. There the Bible says, unless the Lord builds a home, it is vain those who build it by themselves. यहाँ पर इस प्रकार वचन में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा. Today our Lord is going to build our homes. आज प्रभु परमेश्वर हमारे घरों को बनाएगा. And we are going to allow Him to build our homes. और हम उसको अनुमति देंगे कि वो हमारे घर को बनाए. How can we do that? और वो कैसे ये काम कर सकता है? In Proverbs 3, 5 and 6 the Bible says, बाइबल बताती है नीति वचन 3, 5 और 6 में, trust in the Lord with all your heart. लेकिन पूरे हृदय से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख. And acknowledge Him in all your ways. और हर मार्ग में तो उसको अंगीकार कर. And then He will direct your paths. और तब वो तेरा मार्ग में अगुवाई करेगा. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों,
When God builds a home, जब परमेश्वर हमारे घर को बनाता है, He not only wants to build a home, ना केवल हमारे घर को बनाएगा, but He wants to come and live in our homes. वो चाहता है कि वो हमारे घरों में आकर बस जाए। Firstly, we are going to see how God will come and live in our houses. और सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर हमारे घरों में आके रहने लगेगा। In whose home God wants to live. किसके घर में प्रभु रहना चाहता है। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, in Revelations 3:20, our Lord Jesus says, प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, Behold, I stand at your door, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूँ and I knock. और मैं खटखटाता हूँ। If you hear my voice अगर तुम मेरी आवाज को सुनोगे and open the door, और द्वार को खोलोगे, I will come into your home. मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। Not only that, He will come into our homes, यही नहीं कि वो केवल घर में आएगा, but He wants to live with us. लेकिन वो वहां पर हमारे साथ रहना चाहता है। He says, I will dine with you, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा and you will dine with me. और तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे। What a privilege we have, isn't it? कितना सौभाग्य है प्रभु ने हमको दिया है। Today also, my dear friends, आज भी मेरे अजीज मित्रों, you are not going to go to your home alone, आप अपने घर में अकेला वापस नहीं जाएंगे, but the presence of God will come along with you. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग आएगा। You are going to carry the presence of God with you. आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ ले जाएंगे। What a privilege it is to have God with us all the time. और कितना सौभाग्य की बात है कि निरंतर परमेश्वर हमारे संग रहेगा। In Acts 10th chapter, प्रेरितों का काम 10वीं अध्याय, we see about a man called Cornelius. हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है कोर्नेलियुस। He is a man who always prayed to God. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता He था। prayed to God regularly, निरंतर वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था, not by himself, अपने आप में नहीं, but along with the whole household he prays together. और पूरा घराने के साथ वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। This made God's heart rejoice. और इस बात से परमेश्वर के हृदय में बहुत खुशी हुआ। And one day he saw a vision. और एक दिन उसने एक दर्शन देखा, And in that vision he saw an angel of God talking to him. और उस दर्शन में उसने एक स्वर्गदूत को देखा उसे बातचीत करते हुए। And this angel of God said, Call a man of God whose name is Peter. और उस स्वर्गदूत ने कहा कि एक व्यक्ति को बुला जिसका नाम है पतरस। And immediately he obeyed the voice of God. परमेश्वर की वाणी को तुरंत उसने पालन किया। And Peter also visited his home. और पतरस उसके घर में आकर उससे भेंट करता है। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, when this man of God came into his home, जब ये परमेश्वर का दास उसके घर में आया, Cornelius invited all his relatives and friends to his house. और कोर्नेलियुस ने उसके घर में घराने के सब लोगों को बुलाया था। And when Peter came and spoke the word of God, और जब पतरस ने आकर परमेश्वर का वचन प्रचार किया, even while he was speaking, और जब वो बातें कर ही रहा था, the Holy Spirit came and filled every one of them. पवित्र आत्मा उतर आया और सबको भर दिया, And his home became a holy temple of God. और उसका पूरा घर परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर बन गया। God will like to bless our home in the same way. और परमेश्वर इसी प्रकार हमारे घर को भी आशीष देना चाहता है। When he comes and lives in our homes, जब वो आकर हमारे घर में रहने लगता है, he blesses not only our household members, ना केवल हमारे घर के सदस्यों पर आशीष होता है, but he blesses all the friends and relatives that would come into our homes. लेकिन हमारे घर में आने वाले रिश्तेदार और मित्रों को सबको आशीष देता है। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, one day a family visited our house. एक दिन एक परिवार ने हमारे घर में भेंट किया। This happened before I got married. और ये बात मेरे विवाह से पहले हुआ। And that head of the family wanted to have blessing from my father, brother Dinakaran. और वो घर का जो मुख्य है मेरे पिताजी दिनकरन जी से आशीष पाना चाहते थे। And as they were in the meeting, और जब वो सभा में थे, they could not come to their home in the exact time
when they gave an appointment to that family. और प्रभु के दास ने जो समय उस परिवार को दिया था, ठीक समय पर वो पहुंच नहीं सके क्योंकि वो एक और सभा में थे। And that family had to wait for 1 hour to get the prayer of my father. और मेरे पिताजी से प्रार्थना करवाने के लिए उस परिवार को 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। And as soon as my father and my mother and my husband entered the home, और जैसे ही मेरे पिताजी, माताजी और मेरे पति घर में आ गए, they said, "Sorry brother, we made you wait for 1 hour." और उन्होंने उस भाई से माफी मांगा, हम माफी चाहते हैं, आपको 1 घंटा रुकना पड़ा। And this brother said, और तब इस भाई ने कहा, "Brother, don't apologize. और उन्होंने कहा आप माफी ना मांगे, But this 1 hour, I had so much peace in your home. और आपके घर में 1 घंटा मैं बैठा था, शांति से मैं भर गया। As soon as I entered your home, और जैसे ही मैं आपके घर में प्रवेश किया, something filled my heart, और कुछ ऐसी बात मेरे हृदय को भर दिया, and all my fears vanished, और मेरे तमाम भय खत्म हो गया। and I now feel all my problems, the Lord has taken it away. और अब मुझे लगता है कि मेरी तमाम समस्याओं को प्रभु ने दूर कर दिया, And I feel so much of peace in my heart. और मेरे हृदय में बहुत अद्भुत शांति है। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, God wants to make your house like that. परमेश्वर आपका घर भी ऐसा बनाना चाहता है। Those who come in and go out will be blessed in your house. आपके घर में जो आते हैं जाते हैं वो आशीष पाएंगे। When will this happen? ये कब होगा? When you open the door for Jesus जब आप घर का द्वार यीशु के लिए खोलेंगे and seek the Lord with all your heart. और परमेश्वर को पूरे हृदय से ढूंढेंगे। In Amos 5:4 the Lord says, आमोस 5:4 में प्रभु कहता है, He says to the house of Israel like this, इस्राएल के घराने से वो इस प्रकार कहता है, Seek me and you will live. मुझे ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। This is the only thing the Lord asked the Israelites to do. और केवल यही एक बात है परमेश्वर हमसे कहता है कि हम करें, Seek me, that's all. और प्रभु को खोजे, And, उतना काफी है। and then I will make you live. और तब मैं तुम्हें जीवित रखूंगा। In the Bible, you know about Zacchaeus. और बाइबल में आप ज़क्खाई के बारे में जानते हैं। This we see in Luke 19:1-9. लूका 19:1 से 9 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। He came to see how Jesus will look like. और वो इसलिए आया कि देखे कि यीशु किस प्रकार दिखता है। That's all. बस उतना ही, As he was a short man, क्योंकि वो नाटा कद का he था could not see in the crowd how Jesus was. और वो भीड़ में नहीं देख सकता था कि यीशु किस प्रकार है। And he quickly climbed up the sycamore tree. और उसने जल्दी से एक झाऊ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। He just wanted to see how Jesus was, और केवल उसको देखना था कि यीशु कैसा है, how his face will be. उसका चेहरा कैसे होगा, यही देखना था। But then Jesus looked at him अब यीशु ने उसको देखा and he said, I want to come and stay in your home. और उससे कहा, मैं आकर तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ, I want to come and live in your house. मैं तुम्हारे घर में आके वास करना चाहता हूँ। And he went to his house. और वो उसके घर में गया He would have talked with him for long hours. और बहुत लंबे समय तक उससे बातें किया होगा He would have blessed all the family members. और उस परिवार के तमाम सदस्यों को प्रभु ने आशीष दिया होगा। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, God wants to live in our houses. परमेश्वर हमारे घरों में वास करना चाहता है। Every day as we join together as a family and seek God. प्रत्येक दिन जब हम परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर को खोज करेंगे, As Cornelius did. जैसे कर्नेलियस ने किया, Every day in the morning and in the night. और प्रतिदिन सुबह और रात को As we pray to God regularly. निरंतर हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे, God will give you revelations. परमेश्वर आपको प्रकाशन He देगा। will speak to you every day about what will happen on that day. हर दिन प्रभु आपसे बात करेगा कि उस दिन क्या होने वाला है। The blessings that God is going to give you, you cannot even hold those blessings. जो आशीष प्रभु आपको दे रहा है उसको आप सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। My dear friends, the Lord is on your side.
मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपकी ओर है, So be encouraged इसलिए आप ढाढ़स बांधें। as we pray together today. आज जब हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, The Lord will fill you with His joy and your presence. परमेश्वर आपको अपने आनंद और अपनी उपस्थिति से भर देंगे। You are going to be a successful person. आप एक सफल व्यक्ति बनने जा रहे हैं। Shall we look upon this God who would help us in all our weaknesses? तो आइए हम इस परमेश्वर की ओर देखें जो अपने हर एक लोगों की सहायता करते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिताजी, Lord, your children may have gone through so many discouragements. प्रभु जी, आपके संतान कई प्रकार की निराशाओं से गुजरे होंगे। Lord, take it away, Lord. आप उसे दूर कर दें स्वामी, Take it away, Master. उसे दूर कर दें प्रभु जी। Especially the spirit of depression, let them leave them right now, Master. खास करके अवसाद और हताशा की आत्मा उन्हें इसी समय छोड़कर चली जाए प्रभु जी। Fill them with your spirit, Lord. आप उन्हें अपनी आत्मा से भर दें प्रभु। Let all the evil spirit that is haunting them leave them right now. हर एक दुष्ट आत्माएं जो उस समय उन्हें परेशान कर रही हैं, उन्हें छोड़कर इसी समय चली जाएं। Let every darkness in their life leave them right now. उनके जीवन का हर एक अंधकार उन्हें इसी समय छोड़कर चला जाए। Every spirit of witchcraft, let them leave them right now. हर एक दुष्ट जादू टोने की दुष्ट आत्मा उन्हें इसी समय छोड़कर चली जाए। I drive them out of their life. मैं उन्हें उनके जीवन से यीशु के नाम में अभी दूर करती हूँ। Lord, fill them with your presence, Lord. प्रभु जी, आप उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दें। Lord, let the fear in their life leave them, Lord. उनके जीवन का डर उन्हें इसी समय छोड़कर चला जाए प्रभु। Help them to become a successful person. आप उनकी सहायता करें कि वे एक सफल व्यक्ति बने। Take away all the depression. हर एक अवसाद को दूर करें। Lord, we thank you for all that you are doing for your children right now. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं हर एक चीजों के लिए जो आप अपने बच्चों के लिए इसी समय कर रहे हैं। I put your peace and your joy into your children's heart right now. मैं आपके आनंद और आपकी शांति को इसी समय आपके बच्चों के हृदयों में रखती हूँ प्रभु। Nothing of the evil can stand against them, Lord. शैतान की कोई भी चीज उनके खिलाफ में खड़ी न होने पाए प्रभु जी। Lord, you are on their side. प्रभु जी, आप उनकी ओर हैं। Our Lord Jesus is on their side. हमारे प्रभु यीशु उनकी ओर है। Lord, we say this and we receive this blessing. प्रभु जी, हम इस आशीष को उच्चारते हैं और उसे स्वीकारते हैं। Wherever they go, जहाँ भी वे जाएं, let them feel that you are with them, Master. वे इस बात को महसूस करें कि आप उनके साथ हैं स्वामी। Thank you, Father. आपका धन्यवाद Thank पिताजी। you, Lord. धन्यवाद प्रभु। They will never say, I am perishing, Lord. अब वे कभी भी ये ना कहें कि अब मैं डूब रहा हूँ, नाश हो रहा हूँ। No more अब discouragements. कोई भी हताशा नहीं, Only your blessing. केवल आपकी आशीषें उनकी हों। Let them see, help them to see the days of blessing in their lives. आप उनकी सहायता करें कि वे अपने जीवन में आशीष के दिनों को देख सकें। I pray especially for those who are in need of a partner. खास करके मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिन्हें एक जीवन साथी की आवश्यकता है। Lord, you are capable of doing that for your children even though they have crossed the age of marriage. प्रभु जी, जो भी वे अपने विवाह की आयु को पार कर चुके हैं तो भी आप उनके लिए ऐसा कर सकते हैं प्रभु। Take away all their discouragements. उनके हर एक निराशा और हताशा को दूर करें। Settle them in their life, Lord. उन्हें उनके जीवन में आप स्थापित करें। Lord, bless them, Master. आप उन्हें आशीष दें प्रभु। Whoever is going through this problem, let them be blessed in Jesus' name. जो भी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं वो यीशु के नाम में आशीषित हों। Let them have a family life. उनकी सहायता करें कि वे एक पारिवारिक जीवन प्राप्त करें। Lord, I cry out to you for those who do not have a home of their own, Master. प्रभु जी, मैं उनके लिए इस समय पुकारती हूँ जिनके पास अपना एक घर नहीं है प्रभु जी। Lord, grant them their heart's desires. प्रभु जी, आप उन्हें उनके हृदय की इच्छा को पूरा करें। Let them enter into a new home from today onwards. आज से वे एक नए घर में प्रवेश करें प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You are sending this blessing upon your children. आप इस आशीष को अपने बच्चों के ऊपर भेज रहे हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमीन। प्रेज लॉर्ड, मेरा नाम विकी है। मैं अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मेरी जो फैमिली में मम्मी, डैडी और मेरे 3 सिस्टर हैं। हम बचपन से युवा सहभागी हैं। जब से युवा सहभागी हुए हम बहुत सारे आशीषित हुए हैं। जैसे मैं सबसे घर में छोटा हूँ,
मेरी जो 3 सिस्टर है वो उनकी युवा सहभागी होने के कारण से उनकी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो गई है और उनकी बहुत अच्छी तरह से शादी होकर उनको एक बहुत लवेबल हस्बैंड भी मिला है। ये बस सब युवा सहभागी और प्रभु यीशु की कृपा है। जैसे मैं और मेरी भी पढ़ाई युवा सहभागी होने से बहुत ही अच्छी सी हो गई है। मैं यहाँ तक MBA तक पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं प्रभु यीशु का और अंकल पॉल दिनाकरन का बहुत दिल से आभार मानता हूँ।